We will now start with yours truly, Sameer Anjan. Sameer Anjan will be in conversation with Shuja Ali. We will also be talking about his book Lyrics by Sameer, The Stories Behind the Iconic Songs, which is co-authored by Shuja Ali. Shuja Ali is a passionate sports enthusiast, accomplished author, screenwriter, and a prominent Hindi film director with 4 feature films to his credit. He has been the COO of Toyam Sports Limited since 2011, playing a key role as part of the company's core team. Shuja produced India's first sports reality web series, Kumite One Warrior Hunt, which debuted on MX Player and was line produced by Endemol Shine India, a globally acclaimed production house. His second book is set to be released in mid-2025. Additionally, he is deeply involved in developing several sports shows and film projects with a biopic on Bharat Ratna Bismillah Khan, the legendary Shehnai Maestro, being one of his most anticipated works. Now to introduce the Sameer Anjan. We have a short film, an AV of 4 minutes. In the world of Hindi cinema, where music is an integral part of storytelling, there are few lyricists who have left an indelible mark. One such name is Sameer Anjan, a master craftsman of words who has been weaving magic with his lyrics in the tapestry of melodies. सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए. His prolific career spans over 3 decades, making him one of the most celebrated figures in the Indian film industry. Born on February 24, 1958, near Banaras in Uttar Pradesh as Shitala Pandey, into a family with deep roots in the world of music, Sameer was destined for a career in the arts. His father Anjan, a renowned lyricist, whose influence on Sameer's career is undeniable. But Sameer's journey to becoming one of Bollywood's most celebrated lyricists was not an easy one. He started his career as a lyricist in 1983 with the film Bekhabar. Later, his lyrics in films like Dil, Beta, Aashiki, and Raja Hindustani became hugely popular. Known for his versatility, Sameer has penned lyrics for songs across various genres, including romantic, patriotic, and dance numbers, many of which are chart toppers. Sameer's journey to stardom and to becoming a household name was marked by hard work, talent, and a deep understanding of popular culture. Till date, Sameer has written the lyrics for over 4,500 songs in more than 500 films, including some of the most iconic hits in Bollywood history. To name a few, Aashiki, Deewana, Hum Hai Rahi Pyar Ke, Kuch Kuch Hota Hai, Beta, Sajan, Raja Hindustani, Anjam, Fiza, Dhadkan, Kabhi Khushi Kabhi Gum, Devdas, Raz, Ishq Vishk, Dil Mange More, Tere Naam, and Dhoom. He has won numerous awards, including 3 Filmfare Awards and in 2015, the Guinness World Record for writing the most number of songs. He has also penned many non-film songs with social messages. His biographical book, Lyrics by Sameer, The Stories Behind the Iconic Songs, co-written with Shuja Ali, is a wonderful unfolding of the manifestation of his life and work. As we celebrate this remarkable journey of Sameer Anjan,
we are reminded of the power of words to touch hearts, inspire minds, and transcend time. We are proud to welcome Shri Samir Anjan ji to the Pune International Literary Festival 2024. Wow. Wasn't that goosebumps for everyone? We cannot wait any longer. So may I invite our esteemed guests on stage, Samir Anjanji and Shuja Ali. Kindly come up on the stage, please, with a big round of applause. Hello. Good evening, Pune. Good evening, Pune Literary Festival. विपिन जी और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को बुलाया। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने समीर जी के साथ काम किया। समीर जी जैसी बड़ी शख्सियत और इतना उनका काम है, इतना उनका नाम है, लेकिन ये आदमी बहुत सीधे, सरल, सज्जन और बड़े लोगों की शायद यही खासियत होती है कि बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। समीर जी 5000 से ज़्यादा गाने, 3 फिल्म फेयर और पता नहीं कितने अवार्ड्स और कितनी प्रशंसाएं, गिनीज बुक में जाना, कपिल शर्मा जैसे लोग आपका इंटरव्यू करते हैं। आज यहाँ पुणे लिटरेरी फेस्टिवल में क्या आपने सोचा था कभी कि शुजा अली आपका इंटरव्यू करेंगे? सॉरी, मैंने थोड़ा कपिल शर्मा ज़्यादा देख लिया है। तो जी, वेरी गुड इवनिंग। पुणे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के तमाम लोग और ख़ास तौर से मंजरी जी और विपिन जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ मुझे बुलाया। पुणे से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है मेरा। मैं बहुत सालों से पुणे से जुड़ा रहा हूं और मेरी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी पुणे में हैं और ये वो शहर है जहां मेरा दिल कभी कभी होता है कि मैं अब शायद मुंबई वहां रहने जैसी नहीं रहेगी, शायद पुणे में आ जाऊं तो कुछ और साल उम्र बढ़ जाएगी। मुझे पता था कि शुजा भाई ये सवाल ज़रूर करेंगे कि क्या आपने कभी सोचा था कि शुजा अली साहब आपका इंटरव्यू करेंगे? नहीं शुजा भाई, सोचा तो नहीं था, मगर ये गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। ये ख्वाब तो उसी दिन हकीकत बना जब आपने मेरी किताब लिखी और थैंक यू सो मच। अब मैं इतना खुश हूँ इस किताब से और इतनी खूबसूरत किताब आपने लिखी है और जो लैंग्वेज जिस तरह की आपने इस्तेमाल की है, मुझे लगता नहीं कि जब मैं किताब पढ़ता हूँ कि ये आपने लिखा है या मैंने बोला है। जो कुछ मैंने जिया है, जिस तरह से मैंने आपसे कहा, जो कहानियाँ मैंने बताई हैं, आपने उससे भी खूबसूरती से उस किताब को अंजाम दिया है। आप अभी देख रहे थे, मेरा ये भी चल रहा था और जब कभी मेरे बारे में ये सारी बातें होती हैं तो मुझे केवल एक बड़ी खूबसूरत लाइन याद आती है महान कवि नीरज जी की, कि जैसे ज़िंदगी की एक परिभाषा है ना कि अगर लाइफ को डिफ़ाइन करना हो तो कैसे करें, तो एक ही लाइन में उन्होंने कह दिया था कि किसी को नींद आ गई, किसी की आँख खुल गई, बस इतनी ही ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये सारा मुझे ऐसे ही लगता है कि कभी नींद आ गई होगी तो इतना सब कुछ लिख गया और अभी जब नींद खुली तो लगा कि ये सब मैंने लिखा था, कैसे लिख लिया मुझे खुद पता नहीं है। कहते हैं ना कि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। अब तो अपने ही गाने कई बार रेडियो में बजते हैं तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि अरे अरे किसने लिखा है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ, मगर सच कहूँ तो, और अक्सर लोग ये मुझसे कहते हैं कि ये जो गाने आपने लिखे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि ये गीतकार जो होता है वो कभी वो नहीं लिखता जो वो लिखना चाहता है, वो हमेशा वो लिखता है जो एक कहानी, एक किरदार
एक डायरेक्टर और एक कंपोजर उससे लिखवाना चाहता है। हाँ, हमने जो कुछ लिखा या हमको जो चाहिए था लिखवाना वो आपने अपनी किताब में लिखा है। उस किताब में जो आप जैसे लोग, जब मैं कई अपना कॉन्सर्ट्स करता हूँ या आपसे जब रूबरू होता हूँ, तो जब आप लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं आप लोगों की उत्सुकता उन गानों को सुनने से ज़्यादा, अगर मैं आपको एक एक गाने की कहानी बताने लगूं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सारी रात आप एडिटोरियम छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि गानों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनके बनने की कहानी होती है और हर गाने के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। आज तक कोई गाना ऐसा बना नहीं, मैं और मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अंजान हम लोगों ने मिलकर तकरीबन 7,500-8 हज़ार गाने लिखे हैं और ये दूसरी, और आज तक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर का बेटा भी सक्सेसफुल गीतकार बना। तो इन हर पिताजी की भी हर गाने की कहानी वो मुझे जब बताते थे तो मुझे पहले बड़ा अजीब लगता था कि अच्छा गाने ऐसे बनते हैं, क्योंकि मैं जब 23 साल का था तो मैं मुंबई आया, तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रीम की तरह था सुजा भाई, और ये हो गया। ये मेरे बस की बात नहीं थी और मैं हमेशा उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो ड्रीम देख के आया था, एक गाना मेरा रेडियो सिलोन पे बज जाए तो मैं वापस चला जाऊँगा। मुझे क्या पता था कि आप लोगों की मोहब्बतें और दुआएं इतने गाने मुझसे लिखवा लेगी। समीर जी, मुझे एक पुरानी फिल्म का एक सीन याद आ गया जिसके अंदर मुझे याद नहीं है कौन एक्टर्स थे, कॉमेडी का सीन था और उसमें बाप अपने बेटे को लेके जाता है और कहता है इसको देखिए कुछ इसकी बीमारी हो गई है इसको। तो वो कहते हैं, बाप से कहते हैं कि आप बैठिए ज़रा, मुझे पहले आपका चेकअप करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं बीमार नहीं हूँ, बेटा बीमार है। तो वो कहता है नहीं, मैं बीमारी की जड़ तक जाना चाहता हूँ। तो चूँकि स्वर्गीय अंजान जी का जिक्र हुआ है, सर हम लोग थोड़ी देर जड़ की बात करें, और चूँकि आप ज़मीनी आदमी हैं, आप गांव से यहाँ तक आए और यहाँ से पूरी दुनिया में फैले, ज़रा हमें जड़ के बारे में बताइए जिसका इतना शानदार जो है वो फल है, वो क्या है? ज़रा हम सब उनको याद भी करें, उनको स्मरण करें, और बहुत हम सबको जो है उनकी रिस्पेक्ट है। ज़रा आप बताएं अंजान जी के बारे में। सुजा भाई, अभी हम रास्ते में इस विषय पे बात कर रहे थे कि कहते हैं ना कि जो बोया जाता है वही उससे उगता है। तो बोया उनको गया था, उसमें से उगा मैं हूँ। वो मेरे पिता जो थे, वो जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ वो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, और मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमने कभी ड्रीम में, न तो मैंने न मेरे पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उनको गीतकार बनना है या फिल्मों में जाना है। दोनों को तो नहीं कह सकता, उनको ज़्यादा सिचुएशन ने, हालात ने मजबूर किया मुंबई आने के लिए। मेरे पिता जब बनारस में थे तो उनके गुरु थे एक रुद्र काशिकेय। रुद्र काशिकेय का मतलब होता काशी के रहने वाले, मतलब बनारस के रहने वाले। रुद्र उनका नाम था, सरनेम उन्होंने काशिकेय रखा था। वो उनको बोलते थे कि अंजान तुम बनारस मत छोड़ो, मैं तुमको हरबंस राय बच्चन बना दूंगा। क्योंकि उनकी कविताओं में वो लिटरेरी लिखना चाहते थे, वो साहित्य से जुड़ना चाहते थे। और अगर मैं उनकी एक ही किताब उन्होंने लाइफ में लिखी है जिसका नाम है मैं गंगा तट का बंजारा, अगर आप वो किताब पढ़ेंगे और उनके गाने सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस आदमी का, जो आदमी लिटरेचर में जाने वाला था और उसने खाई के पान बनारस वाला लिखा, और उसने, उस आदमी ने कलम से यहाँ तक समझौता किया कि उसको आई एम ए डिस्को डांसर लिखना पड़ा। तो ये उनकी जो बेबसी थी, और उस ज़माने में हरबंस राय की एक बड़ी मशहूर किताब हुआ करती थी, अभी भी है मेरे ख्याल से, वर्ल्ड फेम किताब है मधुशाला। तो उनके गुरु ने कहा कि तू इसकी पैरोडी लिख और उसका नाम रख मधुबाला। और डैडी ने एक पूरी किताब लिख दी थी मधुबाला, और वो इतनी मशहूर थी उस ज़माने यंगस्टर्स में कि जितनी मधुशाला गाई जाती थी उतनी ही मधुबाला गाई जाती थी। मगर वो एक बीमारी से ग्रसित हुए
और वो अस्थमा था, उनको बहुत भयानक अस्थमा था। बहुत कम उम्र में कम से कम 2 या 3 बार वो डेथ के थ्रेट पे गए। और तब डॉक्टरों ने बोला कि इनको बचाने का एक ही रास्ता है कि इनको समंदर किनारे कहीं भेजा जाए, तब ये आदमी, ड्राई क्लाइमेट में आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। और मजबूरी ये थी कि अब समंदर, वहाँ उनको लगा कि सबसे करीब जो है हमारे यहाँ से मुंबई है। और चूँकि वो लिखते थे, तब उनके मन में कहीं ये मनसा हुई कि यार अब जब जाना ही है तो मैं कलकत्ता ना जाके मुंबई जाऊं, ताकि मुंबई में मैं कम से कम ये जो मेरी आदत है लिखने की, इसको मैं व्यापार का माध्यम बना सकता हूं। यहाँ आए और वहाँ उनकी मुलाकात बनारस में मुकेश जी से हो गई थी। और मुकेश ने उनसे कहा था कि, और वो मुकेश जी उनके एक दोस्त के होटल में ठहरे थे, आज भी वो होटल वहाँ पे है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसने अपने दोस्त ने से कहे कि यार एक बार मुकेश जी से मुझे मिलवा दो। तो मुकेश जी को इन्होंने कुछ कविताएं सुनाई। तो मुकेश जी ने कहा कि अनजान, तुम मुंबई आ जाओ, मैं तुमको राज कपूर से मिलाऊंगा। तुम्हारी राइटिंग में वो डेप्थ है कि तुम शैलेंद्र बन सकते हो। आए वो, और मुकेश जी ने उनको राज कपूर से मिलवाया भी। मगर जब पहली बार राज कपूर को उन्होंने गाने सुनाए तो राज कपूर ने कहा कि अनजान, तुम्हारे अंदर बड़ी काबिलियत है, मगर अभी शैलेंद्र बनने के लिए तुमको इस इंडस्ट्री को 15 साल देने होंगे। फिर वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई और एक लंबा संघर्ष रहा। तकरीबन 18 साल के संघर्ष के बाद तो पहली सफल फिल्म, जिसको सफल बोलते हैं, वो थी डॉन, जिसने इतिहास लिखा। और उसके बाद से तो उन्होंने, वो जब तक जिंदा रहे मुड़ के नहीं देखे पीछे। तो कहीं ना कहीं ये जो पोएट्री है, ये जो शायरी है, ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि मुझे कविता जो है वो सौगात में मिल गई, मेरे लहू में कविता आ गई कहीं ना कहीं। मगर पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं गीतकार बनूं। हमेशा से उनकी ये कोशिश थी कि मैं एक तो कॉमर्स पढ़ूं, ताकि लिटरेचर की तरफ मैं बेंट नहीं हूं किसी भी तरह, और दूसरा या तो मैं व्यापार कर लूं या मैं किसी जगह नौकरी कर लूं, मगर इंडस्ट्री में मत आओ। तुम कुछ भी करना, गीतकार बनने की कोशिश कभी मत करना। मैंने कोशिश भी वही की। मैं बनारस यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरी नौकरी हो गई। मगर 2 दिन नौकरी करने के बाद मेरे अंतर मन ने बोला कि तू कौन सा बैलेंस शीट देख रहा है भाई, तेरा बैलेंस शीट कहीं और है। यहाँ रहेगा तो लोगों के खजाने भरता रहेगा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। समीर, तू इधर से निकल। और 2 दिन की सर्विस के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैं मुंबई की सरजमीन पे 1980 में 6 अप्रैल को मैं आ गया। तब से लेके अब तक का सफ़र रहा। और जो सवाल आपने किया, अब उसका जवाब देता हूँ कि उस दिन जावेद साहब के साथ हम लोग बैठ के बड़ी देर तक बात कर रहे थे। एक हमारा बोर्ड का चल रहा था, मिलना हमारा हुआ वहाँ। तो वो बोल रहे थे कि यार कभी कभी ये ख्याल दिल में आता है, जैसे आप जैसे लोग जब सवाल ये करते हैं कि सर आप एक गांव में पैदा हुए और आपने बहुत कहो कि बहुत दरमियाना तरह की एजुकेशन ली और हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की और वहाँ से आप गीतकार बनने कैसे आ गए। चलो मैंने माना कि आपके पिता जो थे वो गीतकार थे, मगर आप पिता के साथ तो रहते नहीं थे, घर का माहौल तो कोई फिल्मी था नहीं, तो फिर आप कैसे गीतकार बने। तो एक बार मैंने भी खुद से सवाल किया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जबकि मेरा टारगेट पॉइंट जो था वो तो एजुकेशन था, नौकरी थी, बिजनेस था, मगर मैं गीतकार कैसे बना। तब अब समझ में आया कि नहीं, कहते हैं ना कि जब वो जहाँ आपको ले जाना चाहता है ना, उसकी प्रिपरेशन वो बहुत पहले से शुरू करता है। अननोइंगली आपको पता नहीं होता। जब आप एक मकाम तक पहुँच जाते हैं ना और वहाँ जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है अरे अच्छा ये सब इसलिए हो रहा था कि मुझे गीतकार बनना था। तब आपको एहसास नहीं था कि आपके साथ जो ये हो रहा है क्यों हो रहा है, मगर वो
आपको आजमाइश में डालता है, आपकी परवरिश एक अलग परवरिश जो उसकी तरफ से होती रहती है, जो आपको पता भी नहीं चलती कि यार ये अगर मैंने ये नहीं सीखा होता या ये शौक़ मेरे अंदर नहीं पैदा हुआ होता तो मैं शायद गीतकार नहीं बन पाता। तो मैं अब रियलाइज़ करता हूँ कि उस ज़माने में कई बार आमद होती थी, कुछ लाइनें आ जाती थी तो मैं सोचूं कि लाइन मेरे दिमाग में क्यों आती थी, मगर अच्छा लगता था तो लिख लेता था। फिर उसके बाद एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शुरू हुआ, वो सारे जिसको बोलते हैं कि जो लड़का जिस तरह का होता है उसके दोस्त वैसे ही बन जाते हैं। तो मुझे लिखने का शौक़ था, तो मेरे आसपास जो दोस्त यार थे वो सब उसी तरह के थे। तो हम लोग फिर एक दूसरे से हर शाम मिलने लगे, फिर नशिस्त शुरू हो गई, फिर ऐसे करते करते करते, और ये सब शौकिया हो रहा था, इसमें कहीं भी इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे गीतकार बनना है। मगर अब देखो ये प्रिपरेशन कोई और करवा रहा है, मुझे तैयार कर रहा है इस ग्राउंड पे लाने के लिए। फिर मुझे संगीत से बड़ा मेरा लगाव था, तो मैंने वहाँ एक छोटी सी क्लासिकल की क्लास ज्वाइन कर ली और मैं बैंजो बजाने लगा। मुझे बैंजो बजाने का बड़ा शौक़ था, तो मैंने बैंजो पूरा सीख लिया। अब यहाँ से मुझे ट्यून को समझने और म्यूज़िक को समझने की एक ट्रेनिंग उसने देनी शुरू की। फिर हम लोगों ने अपनी एक आर्केस्ट्रा पार्टी शुरू की जिसका नाम रखा था मनोरंजन आर्केस्ट्रा पार्टी। तो उसमें हम सारे दोस्त जाते थे, लोगों के घरों में बर्थडे में इधर उधर गाते थे और मैं उसकी एंकरिंग करता था, शेर व शायरी सुनाता था, लोगों को बड़ा अच्छा लगे। ये सारी चीज़ें होती रहीं। फिर मैं वहाँ से फिर मैं रेडियो तक पहुँचा, फिर मैं मुशायरों तक पहुँचा। अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि मुझे गीतकार बनना। जब ये नौकरी मुझे मिली ना, तब तक मैं लिखना मैंने अच्छे से शुरू कर दिया था और रेडियो पे मेरी कविताएं बहुत मशहूर होने लगी थी बनारस में। आकाशवाणी में मैं वहाँ जाके पढ़ता था, मेरा गला बड़ा अच्छा था तो मैं गुनगुनाता था तो लोगों को बड़ा अच्छा लगे। तो ऐसे करते 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 जब यहाँ पहुँचा और नौकरी मिल गई, तब अंतर मन से आवाज़ आई कि नहीं, ये मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और मैंने हमेशा सुजा भाई दिल की सुनी है, मैं कभी दिमाग की मैं सुनता ही नहीं हूँ। जो दिल कहता है मैं उन्हीं रास्तों से जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आपके दिल की कोई चीज़ होती है ना तो आपको पसंद बहुत आती है। बहुत बेचारे ऐसे भी लोग हैं जो दिल चाहता कुछ और है और बेबसी ऐसी है, हालात ऐसे हैं, उनको करना कुछ और पड़ता है, मगर वो उनकी मजबूरी है। मगर अगर सच पूछो तो जिन लोगों ने वो प्रोफेशन चुना जो वो करना चाहते थे, उसी में वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए। उनको तकलीफ़ें भले हुई, मैंने भी 9 साल का संघर्ष झेला है उसके बाद, और कई रातें मैं बिना खाए सोया हूँ। मैं मुंबई का हर दर्द, लोकल ट्रेन से लेके बस से लेके सब कुछ मैंने किया है, मगर वो भी करवाया गया है। वो भी ऊपर वाले ने मुझे इसलिए करवाया कि मुझे उस दर्द का, उस तकलीफ़ का, उस माहौल का, उन लोगों के एहसासात को समझने के लिए वो दर्द देना ज़रूरी था। समीर तैयार हो रहा था। समीर तैयार हो रहा था। समीर जी, आपने बात की इतने स्ट्रगल की, और स्ट्रगल के दौरान जब आप समीर बन रहा था, तैयार हो रहा था आप में खुद में, आपकी एक डायरी थी जो आपने किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को उससे कुछ गाने सुनाए और उन्होंने उस डायरी को खिड़की से फेंक दिया, हाथ से छीन के, ये कहते हुए कि तुम लिरिसिस्ट बनने की काबिलियत नहीं रखते हो। बहरहाल आज 45 साल के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं इस इंसिडेंट के बाद, और जिसकी डायरी फेंकी गई थी वो 5000 गानों का शायर है, और आज हम एक किताब सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये बात कहते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर बहुत मेरे छोटे भाई बहन भी बैठे हैं, इन सब के लिए टेक अवेज है ये। बहरहाल कि आप, बहरहाल वो लम्हा जब आपकी किताब फेंकी गई और आज आप यहाँ अपनी किताब, आपके 5000 गानों में से बेस्ट 50 सॉन्ग्स इस किताब में 50 चैप्टर्स के तौर पे हैं, और वो किताब यहाँ सेलिब्रेट हो रही है, दुनिया के और दूसरे हिस्सों में फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट हो रही है। कैसा, क्या जर्नी रही, बताएं ज़रा प्लीज़ आप। कहते हैं ना सुजा भाई कि जुड़ने के लिए टूटना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप टूटेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे। मैं हमेशा
जब ये सब यंग बच्चे भी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, जब ये बच्चे मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मंत्रा ऑफ योर सक्सेस, मैं उनको दो ही चीज़ बताता हूँ। इवन मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा, जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डैडी ये आपको मिला कैसे। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारे लिए बड़ा आसान सवाल है, मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं तुमको कल इसका जवाब देता हूँ। और फिर मैं सोचने लगा कि ये बच्चों को जवाब देना है तो मैं खुद से ज़रा पूछूं कि सचमुच मुझे मिला कैसे। मैं कोई जादूगर या चमत्कारी बाबा तो नहीं हूँ कि मैं फट करके मैंने सोचा और सब कुछ हो गया। तो वही जो मैंने बोला ना कि आपकी प्रिपरेशन पहले से शुरू हो जाती है, तो मैंने सोचा कि आखिर सचमुच मैं ये सब कैसे कर पाया। तो दो ही चीज़ मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ताकत रही है, और मैं आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं सबसे बोल रहा हूँ, आप जब कुछ बन जाना ना तो अपने से कभी पूछना कि आप बने कैसे। आपके पास दो ही जवाब होगा, ईमानदारी से अगर आप सोचेंगे तो। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके जहन में आई हैं ना, वो आपके जहन का फितूर था, उससे कुछ हासिल हुआ नहीं, आपने खामखा अपना दिमाग जाया किया और कुछ हुआ उससे नहीं। दो ही मंत्रा है किसी भी, मैं मुकेश अंबानी से लेके अमिताभ बच्चन से लेके मैंने बड़े बड़े फिलासफ़र से बात की, और मैं आपको दो तीन लोगों का एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे, कि उन लोगों ने उसी बात को, उसी फिलासफी को अपनी तरह से कैसे कहा। वो दो मंत्र हैं, जो एक तो गीता का वो जो पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, योर कर्मा, योर हार्ड वर्क। दूसरा योर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट, ये कि किसी भी हाल में ना हारने की जिद, आप कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, इसका मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। मैं ब्लैंक पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूँ। मैं जो बात करता हूँ मैं इसलिए नहीं लोगों को बताता कि ये सुनी सुनाई बात है, मैं जब उनको अपनी ज़िंदगी में आजमा लेता हूँ और उसका रिजल्ट जब मैं पा लेता हूँ, तब मैं लोगों को बताता हूँ कि शायद मेरी इस बात से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। इन दो ताकतों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो जब उस आदमी ने मेरी किताब नीचे फेंक दी ना, और मैं नीचे जब उतर रहा था, तो एक तो संघर्ष के आखिरी दौर में था। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग उसका नाम जानना चाहेंगे आपसे स्टेज बहुत छोटे म्यूजिक डायरेक्टर थे बेचारे, उनका नाम था श्याम सागर, और बाद में उन्होंने मेरे साथ काम भी किया, कुछ बहुत प्राइवेट, डैडी के एक दो गाने उन्होंने प्राइवेट मोहम्मद रफ़ी साहब के, सुमन कल्याणपुर के किए थे। वेरी इंटेलिजेंट मैन, बट बेचारे सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जब मैं नीचे उतर रहा था, एक तो संघर्ष की आग में मैं जल रहा था, आखिरी लड़ाई थी मेरी, और उसमें एक आदमी जिसको मैंने 25 गाने सुनाए, पोएम सुनाई, नज़में सुनाई, गज़लें सुनाई, और वो मेरे पिता का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने जब ये कह दिया कि तुम जिंदगी में गीतकार नहीं बन सकते समीर, तुम इतने बड़े शायर के बेटे हो, उनका नाम मत खराब करो, तुम यमकाम हो, तुमको बैंक में नौकरी मिली हुई है, मैं तुमको वापस जाने का पैसा देता हूँ, तुम वापस चले जाओ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो जब मैं नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था, तीन फ्लोर का मकान था उनका, तो मेरे जहन में पिताजी की एक कविता गूंज पड़ी। उनकी एक कविता है कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। यहाँ से मेरा पॉजिटिव थॉट शुरू हुआ कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूँ। अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अगर मैं इसी मोड़ पे हार गया तो मैं लड़ूंगा कैसे। और सुजय भाई, मैं नीचे गया, मेरे पांव लरज रहे थे, मैंने डायरी उठाई और उसी गुस्से में मैं सोचा कि आज मेरा फाइनल इम्तहान है, या तो मैं पास या तो मैं फेल। ये मेरा अंतर मन मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, मगर ये मेरा मन दे रहा है कि सामने वाले का कहीं से कोई पॉजिटिव रिएक्शन आता है कि नहीं। मैं वहाँ से निकला सीधा, उस ज़माने में बड़ी मशहूर संगीतकारा थी उषा खन्ना जी, उनका एक बड़ा मशहूर गाना है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। तो मैं सीधा उनके सिटिंग रूम पे गया। ये मेरा भाग्य था कि वो फ्री बैठी हुई थी और वो जानती थी मैं एक दो बार उनके यहाँ मिलने पहले भी गया था।
तो बोली आजा आजा समीर, क्या हाल है? तो मैंने बोला कि फर्स्ट क्लास उषा जी, क्या लाया है, कुछ सुनाना चाहता है? तो मैंने बोला हाँ, कुछ कविताएं लेके आया हूँ, सुनाना चाहता हूँ। सुजा भाई, मैंने केवल 4 कविताएं उनको सुनाई और जितना निगेटिव रिस्पांस वहाँ से मिला था उतने ही पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि तू 5वीं सुनाई मत, ये 4 गाने मेरे नाम लिख दे और इसी हफ्ते में मैं तेरा गाना रिकॉर्ड करूँगी। और वहाँ से जो मेरा पॉजिटिव थॉट था ना, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि नहीं, कभी भी ज़िंदगी में जब तक खुद से हार नहीं महसूस कर लो नहीं, तब तक हारो मत, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कौन कब कहाँ कितना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जीवन में मैं हमेशा उस चीज़ को याद रखता हूँ और उस आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने आपको बताया रास्ते में को बेचारे, जब मैं इतना सक्सेसफुल हो गया तो मुझे जब देखते थे तो छुप जाते थे, कभी बाथरूम में, कभी इधर उधर, उनको शर्मिंदगी होती थी। मैं एक दिन जाके मैंने उनको पकड़ा और मैं उनको अंकल बोलता था। मैंने बोला अंकल, आप क्यों मुझे देख के झेप जाते हैं या घबराते हैं? देखिए, ये गलती आपकी नहीं थी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए ढूंढ रहा था आपको, कि अगर वो डायरी उस दिन आपने फेंकी नहीं होती तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। कभी कभी कुछ नेगेटिव बातें जो है ना, आपको बहुत पॉजिटिव थॉट दे जाती हैं। तो जीवन में हर चीज में आप पॉजिटिविटी ढूंढो। बोलते हैं ना कि मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो जीवन में हर आदमी में, और हर आदमी में कोई ना कोई अच्छी बात होती है। कोई इंसान ईश्वर ने बनाया ही नहीं जिसमें कुछ न कुछ ऐसा हुनर हो जिससे आप कुछ ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। और बहरहाल आज हम एक किताब सेलिब्रेट कर रहे हैं और मंजरी जी, ये कोविड में जब सब कुछ बंद था और पूरी दुनिया जो है वो लरज़ रही थी कि क्या होगा, और उस वक़्त हम और समीर जी ये किताब लिख रहे थे, तो बहुत कुछ नेगेटिविटी थी, लेकिन हम बहुत इन्जॉय करते थे। और समीर जी से हमारी फ़ोन पे बातचीत और उसको लिखना और फिर सुनाना और फिर इनका अप्रिसिएशन, ये कोविड की जो पॉजिटिव चीज़ें थी उनमें से एक ये था। समीर जी, आज इस किताब की थोड़ी सी बात की जाए। क्या, कैसे, आपको कुछ याद है मैं आया और कैसे ये किताब हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू की और कैसे ये 50 चैप्टर्स जो है वो हमने डिसाइड किए और आज ये किताब रिलीज़ हो गई और काफ़ी अच्छा रिसेप्शन है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ हमारी जो ऑडियंस बैठे हैं, दोस्त भाई हमारे बड़े, सब उनके बारे में उनको कुछ आप बताएं। सुजय भाई, देखिए, मैं एक ख्याल आया कैसे कि मुझे इस तरह की कोई किताब लिखवानी चाहिए किसी से। एक दिन मैं बैठा था और उसी दौर में तो मुझे लगा कि ये शायर जो है, अगर ये फिल्मों में काम नहीं करे, क्योंकि ऐसे ये जो फिल्म के शायर हैं इनको मुशायरों में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी लोगों के दिलो दिमाग में है, इस पे बड़ा बहस का विषय है और मैंने बहुत कुछ इस पे बोला भी है। उनको लगता है कि फिल्मों में जो लोग गाना लिखते हैं उसमें शायरी नहीं होती, उसका लिटरेचर से, फिल्म और लिटरेचर का कोई रिश्ता नहीं है, और मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। और मैंने कहा कि तुम्हारे इसी भरम ने ये हाल किया कि एक फिल्म का लिखने वाला आदमी जो है वो ऑस्कर लेके आया अभी। तो हमने बोला कि बात जो है वो लफ्ज़ों की नहीं होती। शैलेंद्र ने भी लिखा, साहिर ने भी लिखा, मजरू ने भी जब फिल्मों में लिखा, तो शैलेंद्र जैसा शायर क्या लिखता है, तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। और उसी में लिखता है कि मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और ज़माने में, कितनी सदियां बीत गई हाय तुझे समझाने में। तो यहाँ अगर आपको लिटरेचर नहीं दिख रहा है, यहाँ अगर आपको साहित्य नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच में कहीं ना कहीं कोई बुराई। तो मुझे लगा कि ये बेचारे शायर जाएं कहाँ फिल्म के, और ये फिर इनका अर्निंग रिसोर्स क्या हो। मुझे लगा कि एक सिंगर जो है वो कॉन्सर्ट करता है, बहुत पैसा कमाता है, म्यूजिक डायरेक्टर भी कॉन्सर्ट्स करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, मगर एक गीतकार अगर बेकार हो जाए तो वो क्या करे।
तो मैंने बोला गीतकार कॉन्सर्ट क्यों नहीं करता, क्यों नहीं कर सकता भाई, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उस गाने का जिसकी कहानी हमसे शुरू होती, फिर म्यूजिक डायरेक्टर आता है, फिर सिंगर आता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा अब इस ग्राउंड में हमारी कोई यूएसपी तो है नहीं, हमारा चेहरा जो है हम स्क्रीन के पीछे होते हैं, हम सामने तो होते नहीं। सिंगर्स तो सामने आके कॉन्सर्ट्स करके पॉपुलर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कॉन्सर्ट करना है तो ऐसा क्या मैं करूं कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक के जितने भी शो करते हैं सब मेरे गाने ही गाते हैं। तो मेरे गाने तो लोगों ने सुने हुए हैं 1000 बार, तो फिर वही गाने मैं बजाऊंगा तो उसमें चार्म क्या होगा। तो मेरे दिमाग में तब ये ख्याल आया कि हाँ, एक चीज़ जो उनके पास नहीं है वो मेरे पास है, स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग, कि गानों के पीछे की कहानी ये अगर मैं ऑडियंस को और मैं खुद सुनाऊं। जैसे एक अनु कपूर एक शो करता है सुहाना सफ़र, तो वो आर डी बर्मन ने ये कहा था, आशा जी ने ये कहा था, लता जी ने कहा, वो सुनाता है। अब लता जी खुद कह रही हो, आर डी बर्मन खुद कह रहा हो, तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा हो जाएगा आप खुद सोचें। तो मैंने बोला मेरी कहानियाँ और मेरे पिता की कहानियाँ, इतनी कहानियाँ हैं कि अगर मैं पूरे साल हर दिन भी कॉन्सर्ट करूं तो 5 साल तक मैं लगातार रोज कॉन्सर्ट कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि अब मैं इनकी कहानियों पे मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो असलम खान साहब हमारे बैठे हुए हैं, हमारे मैनेजर हैं। मैंने इनसे बोला कि यार तुम एक काम करो, एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी पकड़ो और मुझे अपने खुद के सिंगर जो अच्छे गाते हैं शोज़ में, और एक मैं ट्रायल शो करूंगा और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो मेरी सोच है इसका रिस्पांस क्या आता है। तो जैसे आप जैसे एडिटोरियम, इससे काफ़ी बड़ा एडिटोरियम था, हमने फ्री शो वहाँ पे एक किया और करीब 1,500-2 हज़ार लोग उस शो में आए और वो शो शुरू हुआ। फिर वो हमारी पूरी टीम बनी और वो ऑर्केस्ट्रा वाले थे, मैं, और पूरे शो को एंकर मैं करता हूँ। और मैंने उनसे कहा कि भाई इस शो में जो ख़ास बात है मैं आपको सुनाने आया हूँ यही है कि स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग मैं आपको सुनाना चाहता। शो शुरू हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में शो ख़त्म हो जाएगा। 3 घंटे तक शो चलता रहा, कोई उठने को तैयार नहीं। और जब शो ख़त्म हुआ तो लोग भाग के मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर देखिए गाने तो आपके सब सुपरहिट हैं, हमने सुना हुआ है सबके मुँह से, मगर ये जो कहानी आप सुना रहे थे ना, इसलिए हम बाथरूम तक नहीं गए कि मेरी कोई कहानी मिस नहीं हो जाए। यार गाने मिस हो जाएंगे तो हम तो सुने हैं, सुन लेंगे। बस मैंने उस दिन बोला कि ये एक मैंने ज़मीन तैयार कर दी है आने वाली पीढ़ी के लिए, कि अब तब ये आया कि नहीं अभी इस पर मुझे किताब भी लिखवानी है कि लोग, अभी मैं आपको कुछ गानों की कहानियाँ भी बताऊँगा, थोड़ी थोड़ी बताऊँगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अपनी किताब जो है उसकी बड़ी मज़ेदार ताकि लोग जब बाहर किताब है और शायद अभी मैं उसको साइन भी करूंगा, जब उसको पढ़ें तब उनको हैरत होगी कि यार सचमुच। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी सी एक चीज़ मैं कह दूं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, बहरहाल ये मेरे लिए ये किताब लिखते वक्त बड़ा ही एक ऐसा मोमेंट था और मैं वो 90s और 80s को एंजॉय कर रहा था। ये किताब जो है आपको उस दौर में ले जाएगी और आपको उस दौर का जो गोल्डन जो एरा है जिसको हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक का कहते हैं, आप उसको एंजॉय करेंगे, उन कहानियों को, उस वक्त के बड़े बड़े जो संगीतकार, बड़े एक्टर और उनके साथ के जो लोग हैं वो बहुत आप एंजॉय करेंगे। जी सॉरी। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहली जो मेरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म जहां से मेरी सफलता की शुरुआत हुई वो थी दिल, आमिर खान और माधुरी की। आप लोगों को उसकी कहानी भी मैंने शायद आपको दी हुई है कि उसका जो सबसे मशहूर गाना है, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, वो गाना उस फिल्म में कैंसिल हो चुका था। उस गाने की वजह से मुझे उस फिल्म से निकाला जा रहा था। सिचुएशन ऐसी बनी कि डायरेक्टर ने ये कह के गाना रिकॉर्ड किया कि यार अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो इसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो हम इस गाने को पिक्चर से स्क्रैप कर देंगे। इस पे जाके वो गाना बन के लगा और रिलीज हुआ। और जब रिलीज हुआ
और जो रिस्पांस पब्लिक का आया, उसके बाद उस डायरेक्टर ने कसम खाई, क्योंकि वो उस लाइन पे अटक गया, कहा कि यार समीर, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ये 500 गानों में लाइन सुन चुके हैं, तुम ये लाइन बदल दो। मैंने कोशिश भी की, मुझे भी लगा कि शायद ये अगर इसके दिमाग में कोई बात आई है तो माइट भी। मैंने बदला भी, मगर मैंने वो गाना ट्यून पे लिखा था। जो वर्ड मैं लिखूं उस ट्यून पे वो साउंड उतना अच्छा करे नहीं, मीनिंग तो निकल आए मगर साउंड नहीं करे। एक करीब 8-10 मुखड़े मैंने उसके बाद भी लिखे। जब नहीं हुआ तब मैंने सामने से कहा कि इंदर कुमार, आप प्लीज़ मेरे को निकाल दो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। शायद कहीं हमारा दिमाग अटक गया है, आपकी सोच में कुछ गड़बड़ है, तो ये छोड़ देते हैं, आप किसी और से लिखवा लो। तो उनको लगा कि नहीं यार, ये आदमी बहुत ऑनेस्टी से बोल रहा है और इसने किया, मेहनत भी की इसने, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया। तो उसने बोला चलो देखते हैं, और वो गाना इतिहास बन गया उस पिक्चर का। और उसके बाद डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि अब मैं ज़िंदगी भर कभी लफ्ज़ों को लेके तुमसे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं मान गया कि नहीं भाई, जो आदमी अपने क्राफ्ट का मास्टर है उसको करने दो। दूसरी फिल्म जी, और एक और फिल्म जिसका जिक्र आप बड़े उससे करते हैं चाव से, कि फिल्म बन के तैयार हो गई और फिल्म रिलीज़ पे है और अचानक आपको एक लाइन आ गई और अब आप पूरी फिल्म को और स्टार्स को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं ये तो गाना उसमें डाल दो, और लोग उस गाने को डालने से जो है कतरा रहे हैं, और फिर वो गाना डाला गया और कैसे वो फिल्म का ड्राइवर बना और कैसे उसने फिल्म का बिजनेस किया। अभी ये कहानी तो मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँ मेरी ज़िंदगी की जो माइल स्टोन फिल्म, जिसमें पहली बार मुझे फिल्म फेयर मिला, जिस गाने पे फिल्म फेयर मिला, आज भी इंडियन म्यूजिक में हाईएस्ट सेल आज की तारीख में भी उसी फिल्म का है, जिसका नाम है आशिकी। तो आशिकी का ऐसा हुआ कि ये फिल्म नहीं थी कुछ। गुलशन कुमार ने हम लोगों को, मुझे और नदीम श्रवण को बोला कि भाई, हम लोग गए थे उनसे फिल्म मांगने, तो उन्होंने कहा देखो हम प्रोड्यूसर तो हैं नहीं, हम तो म्यूजिक कंपनी के लोग हैं, तो आप हमारे लिए प्राइवेट एल्बम एक कर दीजिए। तो हम लोगों ने बोला चलो यार, कोई काम वाम नहीं है, यही करते हैं। तो उस एल्बम का नाम रखा गया चाहत, और उसका जो पहला गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वो ये था, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। 5 गाने रिकॉर्ड हो गए। तो गुलशन कुमार ने एक म्यूजिक बैंक खोला और जो प्रोड्यूसर्स आते थे उनको वो सुनाते थे वो गाने। लगली महेश भट्ट आए और महेश भट्ट को उन्होंने गाने सुना दिए। तो महेश भट्ट ने बोला कि यार गुलशन, ये गानों में कुछ जादू है, तू मुझे दे दे, इन गानों के ऊपर मैं कहानी लिखूंगा अब, और मैं एक कहानी क्रिएट करूंगा और एक फिल्म बनाऊंगा रोमांटिक, तो मगर ये गाने तू किसी को देना मत, ये मेरे नाम तू रिजर्व कर दे। हो गई बात। और उसके बाद उन्होंने फिल्म का टाइटल रखा आशिकी। फिर मुझे बुलाया गया हम लोगों को, फिर मैंने वो टाइटल गाना लिखा, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए। अच्छा, फिल्म यहाँ तक तो ठीक है, नया लड़का नई लड़की फिल्म बन गई, म्यूजिक कंप्लीट हो गया। अब रिलीज़ की तैयारी हुई। गुलशन कुमार का फ़ोन आता है मुझे एक दिन कि समीर जी, हम ये पिक्चर रिलीज़ नहीं करेंगे। अरे मैंने बोला क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, इसका रिस्पांस हमने ट्रायल दिखाया, लोगों का बड़ा ख़राब रिस्पांस है, लोग बोलते हैं बड़ा गंदा हीरो, बहुत गंदी हीरोइन है, और ये म्यूज़िक जो है ये तो कोई एल्बम का गाना लगता है, फिल्म का गाना नहीं है, ये पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, आप मत करो, आपका बहुत पैसा डूब जाएगा। अरे मैंने बोला यार ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैं भागा, सीधा मैं गया, नदीम श्रवण को फ़ोन किया, उसके बाद हम लोग महेश जी के यहाँ पहुँच गए। महेश जी बेचारे हमारे साथ गए और सीधा गुलशन जी के ऑफिस में, कह रहे भाई मैंने तो सुना कि गुलशन कुमार पागल हो गया है। तो लोग, और ये बोलते हुए एंट्री ली उन्होंने, अरे भाई सुना है गुलशन कुमार पागल हो गया, गुलशन कुमार पागल हो गया। तो बेचारे डरते बहुत थे, तो भाग के आए। अरे पापा जी क्या हुआ क्या हुआ? बोले भाई मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो अच्छा भला हूँ। बोले नहीं, तुम कुछ हरकत ऐसी कर रहे हो कि मुझे एक खबर आई कि गुलशन का दिमाग पागल हो गया। खैर अंदर गए तो बोले कि क्या हुआ महेश जी? बोले मैंने सुना तू बोल रहा है कि आशिकी रिलीज़ नहीं करेगा। बोले हाँ पापा जी, ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत ख़राब म्यूजिक और बहुत गंदा हीरो हीरोइन है, मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला तेरी प्रॉब्लम क्या है? बोले 2 प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला एक काम कर,
मैं तुझे दोनों की गारंटी देता हूँ। पहली प्रॉब्लम जो तेरी है कि तू बोला म्यूजिक खराब है, मैं तुझे मुझ पे यकीन है, मैं एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हूँ, मैंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। आज मैं तेरे इस टेबल पे वादा करता हूँ कि अगर ये म्यूजिक नहीं चला गुलशन, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। आज के बाद मैं डायरेक्शन करूंगा ही नहीं। तो उसको था तो बहुत शार्प बिजनेसमैन, उसको झटका लगा कि यार इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। बोला पापा जी पक्का? बोले हाँ। बोले आप हमको लिख के देंगे? बोले तू अब भी ले आ, पेपर लिख के दूँ। और उन्होंने लिखा। बोले अभी दूसरी प्रॉब्लम का क्या करेंगे? बोला उसका सलूशन ढूंढ लिया है, उन दोनों के मुंह के ऊपर कोट डाल दो, उनकी शक्ल ही मत दिखाओ, कौन है हीरो कौन है हीरोइन, साला झंझट ही खत्म हो जाए। तो वो जो आइकॉनिक पोस्टर हम देखते हैं वो वहां से बॉर्न हुआ। अब देखिए आज लोगों को लगता है वो क्रिएटिविटी है, अब लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं थी, वो छुपाए गए थे एक्टर, और उसके बाद में वो जुनून बन गए और वो खूब कामयाब हुए। और मगर उसके बाद जो गुलशन कुमार ने बात कही ना, वो मैं सलूट करता हूँ उस आदमी को। उन्होंने बोला महेश जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। बोला मैं वो हाल करूँगा कि इस हिंदुस्तान के लोग जहाँ जाएंगे, साड़ी खरीदने जाएं, बर्तन खरीदने जाएंगे, उनको एक ही चीज़ दिखेगी, आशिकी। और आपके जाएं टॉयलेट के टिश्यू पेपर पे, वहाँ भी आशिकी लिखी होगी। और उसने ऐसा प्रमोशन किया था कि आज तक इतिहास में इतना बड़ा प्रमोशन किसी फिल्म का नहीं हुआ। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, पिक्चर रिलीज हुई और क्या हुआ एवरीबडी नोज दैट। समीर जी, लेकिन ये होता है कि पहले गाना बनता है कि पहले जो है वो लिरिक्स लिखे जाते हैं या ट्यून बनती है, लेकिन यहाँ पे तो आपने उल्टी ही कर दिया। आपने तो कहानी ही पहले जो है वो के बगैर गाना लिख दिया और बना दिया। तो बहरहाल यहाँ से सवाल हुआ, अभी विपिन जी का भी सवाल था और लोगों का भी सवाल अक्सर ये रहता है कि क्या होता है, लिरिसिस्ट पहले अपनी पंक्तियाँ लिखता है या म्यूजिक बनता है और उसमें पंक्तियाँ लिखी जाती हैं? क्या आइडियल सिचुएशन होना क्या चाहिए या क्या होता है? व्हाट इज द प्रैक्टिस? तो हाँ, ये सवाल जो आपने किया सुजा भाई, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, ख़ास तौर से जो पुराने लोग हैं वो, और आजकल के बच्चों को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि पहले धुन बनती है या पहले गाना लिखा जाता है। और इस पे तो एक बार मेरी बहस हो गई थी किसी बहुत बड़े शायर से। उन्होंने कहा था, एक बड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस कहा था कि ट्यून पे गाना लिखना मतलब एक मुर्दे को कई हिस्सों में काट के दफन करने जैसा है। कि एक आदमी ने ट्यून बना के दे दी, अब आप उसमें शब्द ठूंसते रहो, इधर ये डाल दो उधर वो डाल दो, ऐसा। जब मैं काम करने लगा तो चूंकि मैं कभी इस दुविधा में था ही नहीं कि पहले लिखी जाती है पोइट्री, उसके बाद धुन बनती है, मैं प्रिपेयर होके आया था, जो भी होगा मैं दोनों तरह से करूँगा। तो जब मैं इस बात की गहराई में गया और सवाल सोचने लगा कि सचमुच ये सवाल, इसमें सही क्या है गलत क्या है ये जानना ज़रूरी है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो फिल्म का काम है ना, ये दोनों विधाओं में अगर नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने उस शायर से बोला कि देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि ट्यून पे गाना लिखना मतलब एक मुर्दे को काटने, आपने मिरर का एक पक्ष देखा, दूसरा पक्ष देखा ही नहीं। ये आप बोलते हो कि म्यूजिक डायरेक्टर का काम आसान हो गया, उसने धुन बना के दे दी, अब आप उसमें लिखते रहो, वर्ड जोड़ते रहो। अब म्यूजिक डायरेक्टर अगर आपसे बोले कि आप अगर लिख के दोगे तो मेरे सामने प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसी रदीफ और काफ़ी में मुझे बीच में ट्यून बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं वैरायटी ट्यून्स की कैसे दे पाऊंगा। तो होना ये चाहिए कि दोनों को प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हमने बहुत अच्छा लिख दिया है तो दे शुड कंपोज, और उन्होंने अगर कोई बहुत अच्छी धुन बना दी है तो मुझे उस पर लिख देना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम डिस्को डांसर गाना लिखना है तो आप क्या लिखोगे? पहले तो डिस्को की धुन तो आपको मिले, उसका बीट तो आपको पता चले। अभी आप गज़ल के ज़मीन पे आपने लिख दिया गाना डिस्को डांसर, तो बनाएगा कैसे आदमी डिस्को गाना भाई? तो ये जो लोग काम, तो हमारे यहाँ अब एक ऐसा ज़रूर हो गया, पहले ये था 50-50 होता था, और मैं नहीं, साहिर साहब ने, शैलेंद्र जी ने ऐसी ऐसी
धुनों पे गाने लिखे कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये साहिर साहब ने धुन पे लिखा है गाना। और वो बोलते थे कि समीर मेरे लिए तो बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जब धुन मिल जाती है ना तो एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है, एक फील मिल जाता है मुझे। अभी यहाँ पे जैसे लोग कहा करते थे कि भाई पहले मेघ राग जब लोग गाते थे तो बारिश होने लगती थी, तो उन रागों में, उन धुनों में इतनी तासीर होती है कि अगर एक अच्छी धुन आपको मिल जाए तो हमको कंसंट्रेट करने के लिए जो एक ट्रांस में जाना पड़ता है वो जाने की ज़रूरत ही नहीं। वो धुन 4 बार आप बजा दो, ऑटोमेटिकली लफ्ज़ बहने लगते हैं। मगर उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ तुमको बहुत अच्छा। एक गीतकार गया मजरू साहब के पास, तो उसने बोला कि सर मुझे गाने लिखने हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आप गीतकार बनना चाहते हैं या कवि बनना चाहते हैं। उसको समझ में नहीं आया, बोला क्या मतलब गीतकार कवि सब एक ही है ना, वो भी गाने लिखता है, वो भी गाने लिखता है। तो उसने कहा कि उसने गलती से बोल दिया उसने कि नहीं मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, अब जैसे हम बैठे हैं आप बैठे हैं वैसे बैठे रहे। उन्होंने जाके गाना लगा दिया कोई 2-3 मिनट गाना बजने के बाद उन्होंने बंद किया, बोला तुम गीतकार ज़िंदगी में नहीं बन सकते हो। उसने कहा सर आपने तो मेरी कोई पोइट्री सुनी नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं गीतकार नहीं बन सकता। बोले नहीं मैं वो गाना बजा रहा था ना तो देखा पत्थर की तरह बैठे हुए थे, आपकी बॉडी में रिदम है ही नहीं है, आप ट्यून समझ ही नहीं सकते, तो आप गाने कैसे लिखोगे। आप गीतकार नहीं बन सकते क्योंकि 50% तो आपको ट्यून पे काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो टेक्निक आपको आनी बहुत ज़रूरी है, और वो करते करते हर आदमी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टेक्निक है कि आपको बहुत क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ेगा, बहुत म्यूजिक में, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखने लगो, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाती है बात। तो गीतकार और कवि का जो मैं डिफरेंस बता रहा था विपिन भाई को भी वही है कि हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, ट्यून पे काम करते हैं। और अब क्या हो गया, थोड़ा चूँकि साउंड दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि अभी वर्ड्स को जो है लोग उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, और यही रीज़न है म्यूजिक के ड्यूरेशन का। क्योंकि कभी आपने रास्ते में किसी को ट्यून गाते हुए नहीं सुना है, सब लोग शायरी गाते हैं, वर्ड्स गाते हैं। अब उन चीज़ों पे उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, इसलिए म्यूजिक धीरे 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 ख़राब होता जा रहा है। मगर अब लोग, अभी इस साल से जो मैं देख रहा हूँ, अब लोगों की बात समझ में आई कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाला साल जो है ना एक अच्छा म्यूजिक लेके आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ख़राब दौर का कभी आपका ऊपर असर हुआ। बहुत बीच में वल्गर गानों का भी एक दौर आया, और आज जब ये कहा जाता है कि हम खाली लिरिक्स तो इसलिए लेते हैं कि हमें साउंड चाहिए, और आज भी आप 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है जैसे गाने इस एज में सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपकी फिल्म जो है वो इतनी बड़ी हिट हुई। क्या आपको लग रहा है, क्या है ये कहाँ से आ रहा है, ये सोर्स क्या है इसका? क्या देखिए दूसरा भाई, अभी आपने बोला जो आपकी बड़ी फिल्म हिट हुई है भूल भुलैया के गाने, और ये अजीबो गरीब हादसा है देखिए, क्योंकि पहली भूल भुलैया के गाने मेरे ही लिखे थे सारे गाने, उसके बाद दूसरी बनी, उसके बाद तीसरी बनी। अभी जब पहली मैंने लिखी तो उसमें भी एक कहानी कमाल की, एक गाना मैंने जो लिखा जो फिल्म में था ही नहीं, और डायरेक्टर वो गाना करने के लिए तैयार ही नहीं था, बोला नहीं हमारी फिल्म में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये गाना मैं नहीं करूँगा। मगर गुलशन जी के सुपुत्र भूषण ने बोला कि नहीं यार एक क्या गाना चाहिए अभी इस पिक्चर में, ताकि जिसकी वजह से पिक्चर का म्यूजिक चल जाए। तब जाके वो प्रीतम ने और मैंने वो गाना जो बड़ा मशहूर हुआ, अभी भी बहुत मशहूर है वो, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, ये गाना फिल्म में था ही नहीं। इस बार जब ये शुरू हुई तो वो जो गाना क्लासिकल गाना है आमी जे तुम्हार और मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, वो गाना जब गाया तो अमाल मलिक जो लड़का है जो उसकी जो इस बार जो रिक्रिएट किया है, तो उसने मैंने बोला बेटा मैं वो लिख चुका हूँ फिर क्या लिखूँ। तो उसने बोला नहीं अंकल इस बार वो नहीं लिखवाना, इस बार क्लाइमैक्स में हीरो गाना गाएगा, और हीरो की डेथ होती है क्लाइमैक्स में, और वो गाना इस फिल्म में 4 बार आता है, और ये इसके पूरी पिक्चर में यही गाना चल रहा है। और ये आपके बगैर ये किसी राइटर के बस की बात नहीं, चूँकि आपने पहली लिखी है तो आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता है,
तब मैंने वो वाला वर्सन लिखा जो सोनू निगम ने गाया है और बहुत मशहूर हो रहा है वो। अभी मैंने देखा तो रील्स बन रही है, छोटे छोटे बच्चे उसको गाते हैं, सीधा साधा था भोला भाला था मैं तो नादान था। बहुत ज़बरदस्त आजकल सर पे सबके चढ़ा हुआ है जुनून के तौर पे। वल्गर गानों का जो दौर था उसमें आपसे जो फरमाइशें हुई फिल्म मेकर्स की, उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्या हुआ सुजा भाई, जब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि डिमांड और सप्लाई का बड़ा गहरा रिश्ता है, और ये हमारी इंडस्ट्री बड़ी भेड़ चाल चलती है, एक चीज़ हिट हो जाए। अब देखिए सब भूतों के ऊपर पिक्चर बनेगी 1-2 साल तक, हर दूसरी पिक्चर जो है भूत प्रेत के ऊपर बननी शुरू हो गई। उनको ये नहीं समझ में आता कि यार एक चल गई, अभी कई के पान बनारस वाला कोई दोबारा लिखने की कोशिश करेगा वो ज़िंदगी में नहीं लिख सकता। तो जो चल गया उसको कुछ नया नहीं करना, जब तक कि वो 2-4 फिल्म फ्लॉप नहीं होगी ये छोड़ेंगे नहीं। तो अब वो बख्शी साहब का वो गाना बड़ा मशहूर हो गया, चोली के पीछे क्या है। अब हर प्रोड्यूसर जब आए कि यार इसमें भी एक आइटम गाना चाहिए, एक नया लफ्ज़ ईजाद हुआ आइटम। मजरू साहब ने बहुत अच्छा बोला था, एक प्रोड्यूसर आया उसने बोला कि मजरू साहब 2-3 रोमांटिक गाने और एक आइटम गाना आपको लिखना। उन्होंने बोला भाई मैंने नज़में लिखी, गज़लें लिखी, ये पंछी तुम ढूंढ के लाए कहाँ से हो आइटम नाम का, पहले तुम इसका मतलब समझा दो तो मैं इस पे भाई कुछ लिखूंगा। खैर वो कहानी गई और वो जो भी उन्होंने किया नहीं किया, अभी गाना चल गया। अब मैं, मेरी साजन, दीवाना, आशिकी और वो एक रोमांटिक फिल्मों का मेरा दौर चल रहा था। सडन एक हीरो मेरी ज़िंदगी में आया और उसकी एक फ़िल्म मैंने साइन कर ली और वो फिल्म थी कूली नंबर 1 और मुझे गाना लिखना पड़ा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। अब मीडिया मेरे पीछे पड़ गया, अरे सर अच्छे खासे गाने लिख रहे थे, ये सब क्या लिख रहे हैं। और उसमें एक फिल्म, उसके बाद दूसरी फिल्म आई राजा बाबू, उसमें एक आइटम गाना आ गया, सरकाए लो कटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। तो पहले तो मैंने उनको, जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनसे यही कहा कि देखो ये सवाल मत किया करो कि आपने लिखा। मैंने जब साजन लिखी तो उसमें वो कैरेक्टर हीरो शायर था, तब जो मैंने जिया था मैंने अपना रोमांस उस फिल्म में दिया। अब एक कूली है, अब वो कूली खड़ा होकर अगर गाए चौराहे पे कि चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, तो या तो लोग उसे मार डालेंगे या मुझे पत्थर मार देंगे कि ये राइटर पागल हो गया है, क्या लिख रहा है यार। अब कूली की अपनी एक ज़बान होती है। अब एक टपोरी आदमी वो अगर कोई गालिब का शेर सुनाने लगे तो लोग बोलेंगे यार ये कुछ ज़्यादा पागल हो गया, पागल तो था अभी और ज़्यादा पागल हो गया है। तो अब मैं किरदार जीने लगा। अब जब मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने बख्शी साहब का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। मैंने उनसे एक दिन पूछा था कि अंकल एक गाना मुझे आपका बड़ा पसंद है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। एक करेक्टर ट्रक ड्राइवर एक तवायफ के कोठे पे जाता है और वो उसके साथ गाना गा रहा है। अब देखो जब शायर किरदार जीने लगता है, अब जैसे मैंने बोला ना मैं कूली बन गया था जब मैं कूली नंबर 1 लिख रहा था, तो वो लिखता है अंतरे में उसकी सिमली सुनो, मैंने कितनी गहरी बात उनकी पकड़ी थी कि कहता है कि अब वो ट्रक ड्राइवर है, अब वो तो सिमली देगा नहीं कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तुम जो भी हो खुदा की कसम। अब वो गा क्या रहा है कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। अब वो वही बात करेगा जो एक ट्रक ड्राइवर की सोच होती। वहाँ आनंद बख्शी वो नहीं लिख रहा है कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, वहाँ वो किरदार जीने लगता है। गीतकार सही मायने में वही है जो कहानी को जी ले, जो किरदार को जी ले, वरना आप जो लिखोगे वो सिनेमा का गाना नहीं लगेगा, वो सिनेमा के बाहर का गाना लिखा। तो जब ये गाने, और मैंने जितने मेरे ख्याल से 90% जो आइटम गाने हैं वो मेरे लिखे हुए हैं। फिर वो जब दौर चला, फिर वो मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने, फिर वो धक धक करने लगा। और फिर एक दौर अभी शुरू हुआ जब मुन्नी आई, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब फिर मेरे गले लोग पड़े, कह रहे समीर जी अब तो कुछ लिखना पड़ेगा।
तो मैंने बोला यार अभी फिर मुन्नी का क्या जवाब दूं। तो मैंने एक गाना लिखा उसमें हाउसफुल 2 में कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। हमने बोला अब आओ। फिर वो आ रे प्रीतम प्यारे बंदूक में ना तो गोली में है सब आग तो मेरी चोली में है। तो कहीं ना कहीं मुझे बदलाव के साथ बदलना पड़ा। फिर जब नई पीढ़ी आई और जब ये गाना जो उस साल का लिटरली यूथ एंथम हो गया, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो मैंने हर दौर को जिया और जी के जो क्या होता है भैया। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार एक मीटिंग में नौशाद साहब एक लेजेंडरी एल्बम रिलीज कर रहे थे, बिस्मिल्लाह खान, हरिप्रसाद चौरसिया साहब का और एक और कोई बड़े ये शिव कुमार जी का प्राइवेट एल्बम रिलीज़ किया उन्होंने। तो नौशाद साहब उसको रिलीज़ करने आए तो नौशाद साहब ने एक जुमला बोल दिया कि तबस्सुम क्या हो गया कि मौसीकी ख़त्म हो गई, शायरी गटर में चली गई, इतना ख़राब काम हो रहा है। हमारे दौर में साहिर साहब ने और शकील बदायूं ने क्या क्या गाने लिखे। वो तबस्सुम ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उसने बोला कि और ये बात समझनी बहुत, दोनों तीनों चारों पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और यही आज हमारे और जनरेशन के बीच की जो लड़ाई है उसका जो मेन रीज़न है वो यही है। तबस्सुम ने बोला कि देखिए नौशाद साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दौर बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, पीढ़ियाँ बदल गई, भाषा बदल गई। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से वो बात समझ में आ जाएगी। बोले एक बार मेरा ग्रैंड सन मुझसे पूछता है कि दादी दादी आपका फेवरेट स्टार कौन है। मैंने बोला बेवकूफ़, मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक ही फेवरेट स्टार है, दिलीप कुमार। तो उसने कहा अच्छा उनकी कोई पिक्चर मुझे दिखाइए। तो बोले मैं बेडरूम में उसको लगा के अंदर आ गई, हाल में बैठी रही। 10 मिनट देखने के बाद भाग के आया, दादी दादी अरे तो शाहरुख खान की कॉपी कर रहा है। उन्होंने बोला नौशाद साहब आप बोलिए। अब मैं उसको कैसे बेवकूफ़ को बोलूँ कि अरे भाई दिलीप कुमार की कॉपी वो करता है, मगर उसको पता ही नहीं दिलीप कुमार कौन है। भाई उसने दिलीप कुमार, आज के बच्चे कितने ऐसे बच्चे हैं, शकील बदायूनी नाम पूछो उनको पता ही नहीं कौन शकील बदायूनी। हो सकता है आज से 40 साल बाद समीर आप पूछो किसी को पता ही नहीं होगा कौन समीर। नहीं मैं इसमें एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि बहरहाल ये जो डिजिटल दौर है, आप यू बिन वेरी फॉर्चुनेट कि आप इस दौर में हैं और आप बहरहाल आपका काम, आपकी कविताएं, आपका शोहरत जो है वो बहुत 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 रहने वाली है। नहीं लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा, सॉरी टू कट यू, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपने अपने दौर में कुछ बहुत महान लोगों के साथ में काम किया है, आप उनके दौर में रहे हैं, कंटेम्प्रेरी भी रहे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने मजरू साहब के साथ में लिखा है, आनंद जी के साथ में, कल्याण जी के साथ में आपने उनका दौर देखा। ज़रा ब्रीफली अगर आप उन ग्रेट्स के बारे में भी 2 लाइनें अगर बताएं तो ये हो कि इन बच्चों को जो है वो जिनसे संगीत हम तक पहुंचा है, ज़रा उनका भी थोड़ा जिक्र करें। एक लाइन में मैं जवाब दे देता हूँ इसका। दिलीप कुमार से किसी ने, शाहरुख खान ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि दिलीप साहब ऐसा क्यों लगता है हमको कि हम आपसे बेहतर एक्टर न पैदा हुआ न होगा, क्या वजह है? तो जितने भी लेजेंडरी लोगों ने जो कमाल का काम किया, चाहे शंकर जयकिशन से लेके और लक्ष्मीकांत से लेके और तमाम जितने लोगों ने किया, कमाल का जवाब दिलीप साहब ने बोला। उन्होंने कहा कि देखो शाहरुख, मुझे तुमको लगता होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम और अमित और गोविंदा और सनी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तुम लोगों को देखता हूँ स्क्रीन पे तो मुझे अंदर से होता है कि यार काश इस दौर में मैं पैदा हुआ होता तो मैं भी कुछ ऐसा कर। और अगर इसके बावजूद भी लगता है, ये है दिलीप कुमार का जवाब और ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। तो बदनसीबी तुम लोगों की ये है कि तुम्हारे पास के आसिफ और महबूब खान नहीं है। तो वो दौर, वो लोग, वो कहानियाँ, वो माहौल, जुनून वो अभी नहीं है बच्चों में। वो पैशन, वो जो एक कुछ कर गुजरने की, आज के बच्चे अभी जो बैठे हैं ये हमसे इतने ज़्यादा स्मार्ट और इतने ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, इनका कहीं ना कहीं जो मिसिंग थोड़ा थोड़ा है ना, वो वही है कि वो जो
जो रूट से अलग होते जा रहे हैं ना, वो रूट में अगर ये रहें और अगर ये दोनों को कंबाइन कर देना, तो इनसे ब्रिलियंट कोई पीढ़ी ही नहीं है। मैं अपने बच्चों से भी बात करता हूँ ना, और मैं उनको यही बताता हूँ कि बेटा कभी भी तुम ये मत सोचो कि ये पुराना आदमी है, ये तो बैकवर्ड है, या ना 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 ना, कब कहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा तुमको पता नहीं है। तो ये दोनों का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। नई और पुरानी ये दोनों पीढ़ियाँ अगर मिल के काम करेंगी ना, सो दे कैन क्रिएट हिस्ट्री। तो बहुत खूब। समीर जी, आप कुछ और अपनी किताब के बारे में जो है लिरिक्स बाय समीर के कुछ चैप्टर्स का मैं आपको याद दिलाऊं। बहुत मज़ेदार विपिन जी एक चैप्टर है इसका, जिसमें एक म्यूज़िक डायरेक्टर, अच्छा होता क्या है एज फिल्म मेकर, बहरहाल मैंने भी इस चीज़ को देखा कि एक्टर जो है वो म्यूज़िक सिटिंग में आता है और वो बैठता है फॉर द फील ऑफ द सॉन्ग, म्यूज़िक का कैसा है। और वो एक नया लड़का जिसको लॉन्च किया जा रहा था, और वो अपने प्रोड्यूसर के साथ में म्यूज़िक सिटिंग में आया, और म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा यार अगर इसको तुम दोबारा लाए तो हम फिर म्यूज़िक सोच ही नहीं पाएंगे, और उसको म्यूज़िक रूम से बाहर निकाल दिया गया। आज वो बहुत बड़ा स्टार है। ज़रा कुछ कहानी आप बताएं। इसकी बात कर रहे हैं अजय देव? हाँ, एक फिल्म लिख रहा था मैं, बड़ी बहुत मशहूर फिल्म है, उसके गाने बड़े मशहूर हैं। कहानी भी आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ इस किताब में आपको मिलेंगी जो है अभी बाहर मेरी किताब, कि एक एक गाने, खाई के पान बनारस वाला कैसे बना और आशिकी के गाने कैसे बने और उस गाने के पीछे कहानी क्या है, ये सब कुछ मैंने उसमें लिखा है। और सुजा भाई ने इतनी खूबसूरती से उसको लिखा है कि आपको बहुत अच्छा। तो एक फिल्म शुरू हुई थी, उसका नाम था फूल और कांटे, और उसमें नया लड़का नई लड़की, क्योंकि आशिकी हिट होने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि यार नदीम श्रवण और समीर को ले लो, म्यूजिक हिट हो जाएगा, हीरो कोई भी हो। तो सिटिंग शुरू हुई, और 2 सिटिंग के बाद एक बार डायरेक्टर लेके आया कि यार आज वो हीरो से मिलवाना चाहता हूँ। तो जब अजय देवगन की एंट्री हुई हमारे सिटिंग रूम में, तो नदीम को लगा कि उसका प्रोडक्शन कंट्रोलर ओनर कोई होगा, कोई स्पॉट बॉय होगा। तो नदीम को डायरेक्टर आके बोलता है कि नदीम भाई ये लड़का है, यही हीरो है। नदीम भाई उसको पीछे दूसरे रूम में लेके गए, बोला तो इसको अभी लेके चला जाना, तेरी पिक्चर का इतना डिजास्टर म्यूजिक हो जाएगा, इसको देख के मैं कैसे कोई अच्छा गाना बना सकता हूँ यार, प्लीज़ मेरे दिमाग में कुछ एक बहुत खूबसूरत लड़का है, उसको सोच के बनाने दे, वरना तेरा म्यूजिक ख़राब हो जाएगा, मुझे दोष मत देना। क्योंकि आशिकी के टाइम पे तो हमको पता भी नहीं था कि हीरो हीरोइन कोई है कि नहीं है, कुछ नहीं मालूम था, तो इसको दिखाना मत। और कट टू वो लड़का आज इतना बड़ा स्टार बन गया। तो वही जो मैं बोल रहा था, कभी किसी के बारे में प्रेडिक्ट मत करो, कौन किसमें क्या टैलेंट छुपा है किसी को कुछ पता नहीं सुजा भाई। और ऐसी तो मैं तो अभी जैसा अभी हमने तो आपको 10, 12, 15 इंसिडेंट्स ही बताए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ में बैठा हूँ। मैं पंचम दा को मैंने रोते हुए अपनी आँख से देखा है, जिनको हम लेजेंड बोलते हैं, लक्ष्मीकांत को देखा है मैंने। इस इंडस्ट्री में वो लोग जो इतिहास लिखे हैं, उन लोगों के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो कैसी त्रासदी से गुजरे हैं, तब जाके वो इतने लेजेंडरी बने और ऐसा काम किया। तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के बारे में आप मत सोचो, आपकी यात्रा तय है। बस जो 2 चीज़ें आपको मैंने मंत्र बोला वही करते रहो, अपना हार्ड वर्क और अपनी पॉजिटिविटी, ये 2 चीज़ मत छोड़ो, तुम जीवन में जो बनना चाहते हो बन जाओ। समीर जी इतनी बात हो रही है, और आपकी जोड़ी नदीम श्रवण के साथ, मतलब नदीम श्रवण और समीर, यही एक ज़माने में 3 नाम एक साथ एक सांस में लिए जाते थे। थोड़ा सा ज़रा अपनी इस जोड़ी के बारे में, इस जादुई जोड़ी के बारे में थोड़ा सा बोलें। क्या हुआ, मैंने काम तकरीबन 120-125 कंपोजर्स के साथ किया है अभी तक सुजा भाई। एक कहावत है ना कि जोड़ियां बनती हैं आसमानों पे, तो कहीं ना कहीं कुछ कंपोजर्स के साथ कुछ कुछ राइटर्स का भाग्य लिखा होता है,
और वो भाग्य से ही वो कंपोजर आपको मिलते भी हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, आनंद बख्शी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत, आर.डी. बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी। तो कहीं ना कहीं ये हमने नहीं बनाया, ये जोड़ी हमारी वजह से नदीम श्रवण की नहीं बनी। नदीम में एक बड़ी कमाल की काबिलियत थी, एक तो उनकी मेलोडी इतनी कमाल होती थी और शायरी की समझ उस आदमी में बहुत थी। वो समझते थे कि यार इस गाने में क्या डेप्थ है, और मेरे बहुत सिंपल मुखड़ों को जो कंपोजिशन उसने दी है, जिस गाने पे पहला फिल्म फेयर मिला, नज़र के सामने जिगर के पास, उसमें कोई बड़ी महान शायरी मैंने नहीं लिख दी थी, मगर उसकी कंपोजिशन आप जब सुनो तो लगता है कि यार इन आसान से लफ्ज़ को उस आदमी ने कहाँ पहुँचा दिया। और मैं ये बहुत गहरा विषय है और इस पर मैं बहुत बात करना चाहता था, चूँकि वक्त कम है, इसलिए अभी कभी जब फिर मैं आऊँगा आपके बीच तो एक बड़ी टेक्निकल चीज़ आपको बताऊँगा जो बहुत ही खूबसूरत है और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ बहुत काम आएगी। तो मैं एक तो आपका धन्यवाद देता हूँ और बड़ा अच्छा लगा, आज पहली बार हम ऐसे रूबरू हुए। वो तो हम कोविड के ज़माने में फ़ोन पे कह दिया, फ़ोन पे ही सुन लिया, फ़ोन पे आपने सब कुछ लिख दिया। ये पहली बार हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत ऑडियंस और आप तमाम लोग, और ख़ास तौर से मैं मंजरी जी को ये बधाई देता हूँ कि आप राइटर हो के आपको इतनी इज्जत उन तमाम राइटरों से है जो कहीं ना कहीं लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। आप तो केवल कहानियाँ लिखती हैं, मगर एक गीतकार, एक योगा का टीचर, एक अलग तरह के ज़मीन से आए हुए लोग, इस तरह की चीज़ें, ये बहुत सौभाग्य है और मेरे ख्याल से इस मुल्क का कुछ बहुत अच्छा होना है कि आज यहाँ की आबो हवा में लिटरेचर, अध्यात्म, ये चीज़ों से लोग जुड़ रहे हैं। और उसमें भी सबसे अच्छा जो आप काम कर रहे हैं, यूथ को जोड़ रहे हैं। उनका जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, इनको समझ में आए कि हमारे ही शहर में मंजरी भी रहती है एक राइटर जो इतना खूबसूरत लिखती हैं और इतनी कमाल की कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। तो ये बच्चों को मालूम ही अगर नहीं होगा तो ये आपकी हमारी इम्पॉर्टेंट को कैसे समझेंगे और इनको क्या बनना है। इनके लिए कोई ना कोई लैंडमार्क तो होना चाहिए ना, कि हमको समीर बनना है, मंजरी बनना है, सुजा बनना है, जो भी बनना। तो बच्चों को जो आप इन्वॉल्व करते हैं ना, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए, और मेरी दुआ है कि आप ये फेस्टिवल सालों तक ऐसे ही चलाती रहें। आमीन आमीन। मंजरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन जी, आप लोगों ने इस किताब को सम्मान दिया, आपने बहुत सारी और किताबों को सम्मान दिया, मालिक आपको सम्मान दे रहा है, आपको सराह रहा है। इतने एडिशंस करने लिटरेरी फेस्टिवल के, मुझे भी पता है कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या एफर्ट्स जाती हैं। कमांडेबल, मालिक आपके साथ में है, क्योंकि आप बहरहाल विद्या सरस्वती उससे जुड़े हुए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब जी। ऑडियंस में से कुछ लोग समीर जी से सवाल पूछना चाहें तो आप के पास माइक है। आप एनीवन? धूम मचा ले धूम 2003 में आई, फिर 2006 में आई, 2013 में आई, 2006 की सबसे बड़ी हिट थी, 2013 की सबसे बड़ी हिट थी, 2003 का भी ये था। ये गाना जो धूम मचा ले धूम धूम, वो इतना बड़ा हंगामा है। आज 21 साल हो गए। अब इस कहानी, इस गाने के बारे में जिसने 21 साल और 3 फिल्म और आज तक वैसे चलता है, इसके बारे में कुछ जानना चाहता था। अरे अगर 45 साल तक समीर चल रहा है तो धूम मचा ले धूम कैसे नहीं चलेगा? असलम भाई, जब तक मैं चलूँगा तब तक धूम मचा ले धूम चलता ही रहेगा, फिक्र मत करो। कहानियाँ बहुत कुछ है, मगर अब वक्त नहीं है अब इनके। जी जी प्लीज़, किसके पास माइक है? एनीवन? हेलो सर। हाँ जी सर, मैं गुंजन हूँ। सर 2 बच्चे हैं। सर इंग्लिश की पोइट्री लिखते हैं। हम 1980s 1990s में वी हैव टेकन बर्थ, तो हमने आपके गाने हमेशा सुने हैं, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे पोइट्री लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, अच्छे भाव हैं। लेकिन इन बच्चों को हम चाहते हैं कि जैसे आपको हम बॉलीवुड में देखते हैं, आप इतनी अच्छी सक्सेस के साथ, इतने अच्छे भाव के साथ लिखते हैं, बच्चों को हम ऐसा क्या करें कि इंग्लिश की पोइट्री के साथ साथ वो हिंदी में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करें, उतनी ही फीलिंग्स लेके आएँ। ऐसा हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
ले चलिए इनको हमारे गांव में, जहाँ से आप हट के आ गई हैं, जो भी रूट है। हमारी यही गलती हो रही बेटा कि हम अपने रूट से कटते जा रहे हैं। अब इन बच्चों को हमने कॉन्वेंट में पढ़ाया, इन बच्चों को हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। पहली बात तो उनको हिंदी के बहुत करीब लाना पड़ेगा, पहली शर्त। और कुछ हिंदी की किताबें, अच्छी किताबें उनको पढ़ने के लिए दो, और उनको पढ़ा के फिर आप उस पर उनसे डिस्कस करो। कोशिश करो घर में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी गाने सुनने की और हिंदी में बात करने की, और पुरानी कहानियाँ उनको बताने की। कहीं ना कहीं जब तक उनके लिए वो माहौल तैयार नहीं करोगे आप, तो मेरा खुद का बेटा वो नहीं लिखता हिंदी में, तो वो उसकी गलती नहीं, वो गलती मेरी है। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में, इनको जो हम रूट से काटे हैं ना, वो रूट तक आप अगर नहीं लेके जाएंगे, कभी अपना गांव नहीं हो तो किसी के गांव में लेके जाओ, कहीं जाओ, मगर इनको दिखाओ कि नदी क्या होती है, तालाब क्या होता है, फसलें कैसी होती हैं, बैल क्या होते हैं, गायें कैसी होती हैं। तो ये जब तक वो सब चीज़ें देखेंगे नहीं, और ये बड़ी नाजुक उम्र होती है, इसमें इनको अगर आपने वो डाल दिया इनके अंदर ना, तो कहीं ना कहीं इनका अट्रैक्शन डेवलप होगा, और धीरे 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 ये हिंदी जो इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका हिंदी अनुकरण करके उसको हिंदी में भी लिखवाइए। उनसे नहीं लिखा जाता तो आप उसको हिंदी में उसका अनुवाद करके उनको पढ़ के बताओ कि देखो अगर तुम हिंदी में लिखते बेटा तो ये ऐसा लगता। यही सारी प्रैक्टिस अगर आप करवाती रहेंगी तो वो पिकअप कर जाएंगे बच्चे। समीर जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप 2-4 शब्द कहिए, क्योंकि जब आप शब्द कहते हैं तो वो पंक्तियाँ बन जाती हैं, और वो पंक्तियाँ कविता और गाना बन जाते हैं। तो 2-4 शब्द आप कहिए इस फेस्टिवल जो PILF है, इसके ऊपर अगर आप कुछ कहो तो बहुत खुशी होगी। मैंने तो इतनी सारी दुआएं दे दी आपको, अभी आप 2 शब्द बोलने के लिए बोल रही हैं। मैं अभी देखो, मैं एक आपके मोटिवेशन के लिए, आप जो लोग ये फेस्टिवल कर रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए, जो मेरा ही शेर है जिससे मोटिवेट हो के मैं यहाँ तक पहुँचा, और अभी भी मेरे मन में वही ख्याल है, और जब तक आप लोगों के मन में वही ख्याल होगा, ये फेस्टिवल आप कहाँ लेके जाएंगे आप सोच नहीं सकती। ये शेर है कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो 12 साल हुए हैं ना, बोले कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगी मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो इस फेस्टिवल को नंबर 1 बनाना है, ये जुनून रखो, ये पॉजिटिव थॉट रखो। इससे बड़ा फेस्टिवल पूना में कभी आगे होगा नहीं, एक दिन वो भी आएगा और आप लोग देखना। और एक शेर अपना सुना के जाता हूँ जो मैंने कभी अपने लिए लिखा है, कि कहता है कि जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे। जिंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। शुक्रिया। नहीं, हमारी दुआएं हैं आप बहुत जिएं, और आपको हम सबकी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा अली जी, समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया है कि आपने वक्त निकाला और हमें इतना अच्छा ऐसे लग रहा है कि बस वक्त थम जाए। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ PILF गेस्ट्स।